अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस बात से अवगत है कि प्याज, टमाटर और अदरक के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस स्थिति को मैं चंद पंक्तियों में बयां करना चाहूँगा कि भूख, महंगाई और गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी। एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही थी। सरकार प्याज, टमाटर और अदरक की मूल वृद्धि को रोकने के लिए क्या विचार कर रही है? क्या सरकार इसके निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है? कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। शेर और शायर से काम नहीं चलेगा मंत्री जी, कृपया आंकड़ों में बात कीजिए। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों का मूल्य लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 82.94 रुपए हो गया है। यानी कि $1 के बदले अब हमें 82.94 रुपए खर्च करने होंगे। इस बेलगाम अवमूल्यन का कारण क्या है और रुपयों के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है? 2-3 महीनों में रुपए के अवमूल्यन पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। क्या मंत्री जी ये कहना चाहती हैं कि अर्थव्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? अगर अर्थव्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ना है तो सरकार इस्तीफा दे। इस्तीफा दे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, honorable members, I wholeheartedly welcome you all at the National Youth Parliament, in the winter session of Youth Parliament. Hope this session would be a very fruitful one as we sit here to deliver the matter of great national importance. Before beginning the session, there is an important announcement for the House. The successful landing of Chandrayaan-3, the matter of great pride for our nation. With this, India became the 4th nation to land on moon and first ever nation to land on the south pole of the moon. Now let us start today's session with oath or affirmation. Secretary General, please. Srimati Rekha Devi, who is elected from Sitapur, Uttar Pradesh, will now take oath or affirmation. Srimati Rekha Devi. Madam, would you like to take oath or affirmation? Oath, madam. In which language would you like to take oath, madam? संस्कृत में, मैडम। अहम रेखा देवी, लोकसभाया सदस्य तेव निर्वाचिता निश्चय परमेश्वरस्य नाम्नाश्यत् अहम विधिना स्थापितं भारत सत्यं संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यद् अहं भारतस्य सम्पूर्ण सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षसामि तथा यत् पदं ग्रहणतोऽहम् उद्यतो अस्मि तथा कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। Honorable members, it is with sadness I inform the House about the sad demise of our former cabinet minister, Shri Giriraj Yadav ji. Shri Giriraj Yadav ji was an agriculturist by profession and an active social worker. He worked in the rural area, devoting his time and energy for the welfare of agriculture labor and upliftment of weaker section. He was also the president of Kisan Sabha Rohtak, an able parliamentarian and an effective orator who took keen interest in the proceedings of the House.
He passed away at New Delhi on 30th of August 2023 at the age of 73. Sir, I stand to pay my tributes to Shri Giriraj Yadav ji, whose death has been deeply mourned by all. He was son of soil. I want to extend my deep condolences to his family. सर, मैं अपनी भावनाओं को आप और प्रधानमंत्री जी द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में संयोजित करता हूँ। इस तरह से अचानक गिरिराज यादव जी का इस दुनिया से चले जाना न केवल इस सदन के लिए बल्कि देश के लिए भी भारी क्षति है। ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति उनके परिवारजनों को प्रदान करे। शुक्रिया। Now the House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General may convey the message of condolence to bereaved family. Yes, sir. PM to introduce new ministers. Mr. Speaker, sir, I have pleasure in introducing you and through you to the House members, my colleagues, the new ministers. Srimati Radha Iyer, Minister of Civil Aviation. Shri Babulal, Minister of Agriculture. Now the question now begins. प्रश्न संख्या 101 सुश्री आकृति। श्रीमान अध्यक्ष जी, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों का अवमूल्यन लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 82.94 रुपए हो गया है, यानी कि एक डॉलर के बदले अब हमें 82.94 रुपए खर्च करने होंगे। इस बेलगाम अवमूल्यन का कारण क्या है और रुपयों के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? Concerned minister, please. अध्यक्ष जी, सरकार को यह जानकारी है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। अध्यक्ष जी, इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण सोने के आयात में तीव्र वृद्धि है, जिसके कारण चालू खाते का घाटा अधिक बढ़ गया है। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को ये सूचित करना चाहती हूँ कि भले ही भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में 82.94 रुपये हो गया है, परंतु इस अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार एवं आरबीआई द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। आरबीआई ने 30,000 करोड़ के बॉन्ड बेचने का निर्णय लिया है, जिससे बाजार की तरलता को सोखा जा सके। आरबीआई ने यह निर्णय किया है कि ओएनजीसी, आईओसी इत्यादि कंपनियों के अतिरिक्त अन्य कोई कंपनी विदेशी परिसंपत्ति की खरीदारी नहीं कर पाएगी। सरकार एनआरआई बॉन्ड लाने पर भी विचार कर रही है। इन उपायों से आशा है कि आने वाले 2-3 महीनों में रुपए के अवमूल्यन पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। क्या मंत्री जी ये कहना चाहती हैं कि अर्थव्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? अगर अर्थव्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ना है तो सरकार इस्तीफा दे। माननीय सभासदों, सदन की गरिमा को बनाए रखें और आप कृपया करके बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, जहां दुनिया भर के देशों से निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की नई ऊंचाइयां छू रही है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड होम ऑफ 108 यूनिकॉर्न एज ऑफ May 2023। अध्यक्ष जी, इससे ये पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार की ओर लौट रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था की जल्दी पटरी पर आने की संभावना है। आकृति जी, any supplementary question? नो सर। The floor is open for any kind of supplementary question.
प्रश्न संख्या 102 श्री राजीव कुमार। अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस बात से अवगत है कि प्याज, टमाटर और अदरक के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस स्थिति को मैं चंद पंक्तियों में बयां करना चाहूँगा कि भूख, महंगाई और गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी। एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही थी। सरकार प्याज, टमाटर और अदरक की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या विचार कर रही है? क्या सरकार इसके निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है? कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। शेर और शायर से काम नहीं चलेगा मंत्री जी, कृपया आंकड़ों में बात कीजिए। माननीय सदस्य, कृपया करके आप बैठ जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ये जो विपक्षी दल चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पर गांधारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है, इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टंग जाऊं, मन का सच बोलूंगा मैं। हो ना हो ये जमाखोर तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं। कलम सत्य की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। विपक्षी दल गुरु द्रोण सा पुत्र मोह का दोषी है, जो जमाखोरों का मालिक है वो घोटाले का दोषी है। अध्यक्ष जी, टमाटर, प्याज और अदरक के मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। सरकार इनकी कीमतों पर नियंत्रण के लिए कई प्रकार के उपाय भी कर रही है। जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। सरकार टमाटर, प्याज और अदरक के आयात के संबंध में बांग्लादेशी सरकार के संपर्क में भी है। Question is that the bill to improve performance of our player and develop sports in our country with international standard to be taken into the consideration. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Clause by clause consideration. Now the question is, clause 2 to 7 stands a part of the bill. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Clause 2 to 7 stands a part of the bill. Now the question is, clause 1, enacting formula and title stands a part of the bill. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Minister for Sports and Youth Affairs, please. Sir, I move the bill to be passed. Motion moved. The bill is passed. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. The bill is passed. Now the House is adjourned to meet again on 9th of September 2024 at 11 a.m. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।